ANMR ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನವೋದಯ ಶಾಲೆಯ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ತಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್, ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವೂ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ತಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಸ್ಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕುರ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಗುಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬರಲಿ, ಅವರು ದೇಶದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಲಿ ಎಂದರು. ಮಕ್ಕಳು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಶಿಸ್ತು, ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಮಾನವೀಯತೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವೈಚಾರಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆದರ್ಶ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸದಾಕಾಲ ದುಡಿದು ಧನ್ಯರಾಗಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಿಟ್ಟಾಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯಾದ DL ನಾಗೇಶ್, ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸುದರ್ಶನ್ ಯಾದವ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ S ಆನಂದ್, ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪುಷ್ಪಾ ಗೌಡ, ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ KC ಶಂಕರೇಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪೋಷಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮುತ್ತಿನ ಹಾರತಿ ಮುಕುಂದನಿಗೆ, ರತ್ನದ ಹಾರತಿ ರಾಮನಿಗೆ, ಅವಳದ ಹಾರತಿ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ, ಅವಳದ ಹಾರತಿ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ, ಮುತ್ತಿನ ಹಾರತಿ ಮುಕುಂದನಿಗೆ.
and parents, with a round of applause. I kindly request everyone to stand.
बाद में आप इधर स्पीच करने के लिए हिंदी में थोड़ा अभी सीखे। मेरा स्कूल का हिंदी भाषा चालू भाषा सर प्लीज सर हिंदी में मुझे लिखे 35 और 5 मार्क्स सर प्लीज थोड़ा हिंदी में बात करें। सर मैं एक ही बात बोलूँगी, मैं अभी 10 मिनट आप इधर देखिए अभी मेरे को शांत हो। थैंक यू सो मच मेरे स्कूल आने के हमारे स्कूल आने के लिए गाँव का स्कूल आने के लिए। मैं थोड़ा हिंदी कल रात भी थोड़ा एक हिंदी मूवी देखते सर, हिंदी में थोड़ा मिस्टेक है तो हिंदी मूवी सलमान खान का मूवी देखने के बाद इधर हिंदी में बात करते थोड़ा बहुत खुश है सर आप इधर आने का। मेरे का ये स्कूल है ना, ये स्कूल नहीं सर, मेरा बच्चा है सर। थैंक यू सो मच सर। ಗೌರವರಿಗೆ ನಾವು ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ, ನೀವು ಸಹ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ನಂತರ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಸವರಾಜ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಅವರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣ ಬಸವರಾಜ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು when I was a student in agriculture university in Gadia, really I faced so many problems by talking English, conversation, by communication to others. I faced a lot. I had that day, I want to start English medium in our village to give good education. Only that intention I started this institution, sir. Nothing else. So I am very happy. I faced so many problems because it is a village. In a village, all farmers and agricultural laborers sons. They are very coming from the poor background. Even though I am very happy because I come from the same village, in this village only. I am also come from the farmer's son. So anyhow, today I am very grateful to our Honorable Governor Tawarchand Gehlot to come here and give some words and awarded degree. That means degree graduation is one of the student express and master also express. So I thank you Lord to the Honorable Governor and the parents and the DC of our district, SP, Superintendent Police of our district, and CEO, other officers, and my friend of Parliament. He is the Senior Assistant Director Horticulture Chintamani and present he is working Executive Officer of Chintamani Taluka Panchayat. He also came and other officers are here. For all from my side, I am thankful to this function and success for all. Thank you. Sit down, sit down. ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ. Please. ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಒಂಚೂರು. मंत्री महोदय एजुकेशन ट्रस्ट संस्थापक श्री के.सी. सुंदरगौड़ा जी, प्रिंसिपल आदरणीय श्रीमती अप्पा जी महोदय,
एजुकेशन ट्रस्ट परिवार का समस्त सदस्यगण, सम्माननीय अतिथिगण, प्यारे प्यारे बच्चों, अन्य उपस्थित सभी महानुभावों, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि बलरामपुर जिले के पूर्व गाँव में जन्मे समाज से सरल व्यक्तित्व के धनी कृषि विशेषज्ञ श्री केसी शंकर गौड़ा जी द्वारा 1987 में ग्रामीण किसानों और मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के उद्देश्य से नवोदय विद्यालय संस्था की स्थापना की। स्थापना के समय से ही ये संस्था श्री केसी शंकर गौड़ा जी के मार्गदर्शन में और पुष्पा जी की देखरेख में लोकतांत्रिक समाज में सक्रिय स्वतंत्र सोच और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए शिक्षा देने हेतु शिक्षित करने के साथ साथ छात्रों में बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक क्षमता विकसित करने का कार्य कर रही है। प्रसन्नता का विषय है कि 100% उत्तर परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ गतिविधियों के कारण इस संस्था की गणना श्रेष्ठ संस्थाओं में होती है। संस्था के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रशंसनीय कार्य एवं प्रयासों के लिए मैं संस्था परिवार के समस्त सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं जब यहाँ आया तो एंट्रेंस से ही जिस प्रकार से स्वागत कार्यक्रम वगैरह हुए वो सराहनीय है, प्रशंसनीय है। मैंने अभी भी देखा कि यहाँ के छात्र छात्राओं ने अच्छी परेड की है और उत्साहजनक वातावरण में इस कार्यक्रम में अनुभव है। मुझे बताया गया है कि इस संस्था की छात्रा एमएस भावना ने से 617 अंक प्राप्त कर इस संस्था को गौरवान्वित किया है। मैं किसान परिवार के बेटे को बधाई देता हूं। बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट 100% रहा है और अच्छा रिजल्ट रहा है। अच्छे अंकों से छात्रों ने सफलता प्राप्त की है। मैं उन सब छात्रों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ग्रेजुएशन डे सेरेमनी में आज अनेक छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए हैं। मैं इन सभी छात्र छात्राओं को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। आदरणीय शंकर गौड़ा जी ने और पुष्पा जी ने अपने संबोधन में जो जानकारी दी है मैं उससे प्रसन्न हूँ। मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ और मैडम ने बोलते हुए भावुक होकर के आंखों से आंसू आ गए। ये इस बात को दर्शाता है कि दोनों ने मिलकर के कठिन परिस्थितियों, विकट परिस्थितियों में इस संस्थान की स्थापना की और इस स्थान को अच्छे स्तर पर पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। मैं इसके लिए उनके कार्यों की प्रशंसा करता हूँ। हमारी शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक परंपरा अति प्राचीन है। प्राचीन काल से ही वसुदेव कुटुंबकम के दर्शन और ज्ञान पर केंद्रित होकर विश्व बंधुत्व और विश्व शांति तथा समता और समृद्धता की शिक्षा देती है। भारत पुरातन काल से ही ज्ञान विज्ञान
और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित थी। इस कारण हमें विश्व गुरु माना जाता था और हमारी अर्थव्यवस्था सशक्त थी। इस कारण देश सोने की चिड़िया कहलाता था। शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। शिक्षा जीवन के हर क्षेत्र में काम आती है। व्यक्ति का विकास शिक्षित होने पर अच्छा होता है। शिक्षा अपने विचारों को व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करती है। हम सब जानते हैं कि आज के बच्चे कल के भारत के निर्माता है और इस देश का भविष्य है। इसलिए उनकी शिक्षा एवं कल्याण और उनमें नैतिक गुणों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। बालक बालिकाओं के प्रथम गुरु के माता पिता और परिवार के लोग होते हैं। बच्चों को प्रथम शिक्षा अपने परिवार से मिलती है। परिवार से ही वो संस्कार ग्रहण करते हैं। इसी नींव पर बालक की शिक्षा दीक्षा तथा संपूर्ण जीवन की योग्यता और ज्ञान का महत्व खड़ा हुआ है। बाल्यकाल में बालक को सुनाई गई प्रेरक कथा कहानियां उपदेश को दिया गया ज्ञान जीवन भर उसका मार्गदर्शन करता है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में बह रहे अंडे के छिलकों पर निशाना लगाकर देखा। किसी का एक भी निशाना सही नहीं लगा। उन्होंने एक लड़के की बंदूक ली और लगातार 12 सही निशाने लगाए। ये देश लड़कों ने यह देख करके लड़कों ने पूछा, आप ये कैसे कर रहे थे? स्वामी जी बोले, जो भी करो पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर रखो, तुम भी कभी असफल नहीं होंगे। पढ़ाई करते समय जो भी गतिविधियां आप संचालित करके उसमें भाग लेते हैं, एकाग्रता से उस काम को करते हैं, निश्चित रूप से सफलता मिलती है। मैं शिक्षकों से आग्रह करना चाहूँगा कि बच्चे गीली मिट्टी जैसे होते हैं, उनको आप जिस आकार में डालना चाहें डाल सकते हैं। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनकी असीम शक्ति को समाज कल्याण एवं राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करें। भारत युवाओं का देश है। भारत की लगभग 63% जनसंख्या की आयु 33 वर्ष से कम है। युवा देश का भविष्य होने के साथ साथ देश के विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। युवाओं से अपेक्षा है कि वे देश के विकास के लिए अपना सक्रिय योगदान प्रदान करें। देश ने आजादी के बाद सभी क्षेत्रों में इन 75 वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। आज हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसे और अधिक मजबूती प्रदान करके विश्व की 3वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए देश संकल्पित है। हमें इसमें अपना योगदान देने की आवश्यकता है। देश को विकसित राष्ट्र बनाने, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की दिशा में आपकी भूमिका एवं भागीदारी महत्वपूर्ण होगी। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप यथा योग्य इसमें अपना योगदान दें और देश को विकसित राष्ट्र बनाएं। आपको और हमको पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले जवानों ने ये सोचा था कि हमारा देश आजाद होगा, फिर से विश्व गुरु बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा और आजादी के जब 100 वर्ष पूर्ण होंगे तो देश दुनिया के देशों में विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में अग्रिम पंक्ति में आकर के खड़ा हो जाएगा। इन सब बातों को साकार रूप देने में आप अपनी अहम भूमिका निभाएं, अपना यथा योगदान दें।
संस्था के लिए विकसित राष्ट्र बन सके। मैं विद्यार्थियों से भी कहना चाहूँगा कि शिक्षा और खेल में जो रुचि है और इसके साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लें, ताकि आपका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास हो सके और आपका जीवन सफल हो सके। मैं इस संस्था में आकर के प्रसन्नता व्यक्त करते हुए संस्था ने जिला एवं राज्य में अपना श्रेष्ठ स्थान बनाया है, इसके लिए संस्था परिवार के सभी सदस्यों को मैं बधाई देता हूँ और विद्यार्थियों का उत्कृष्ट मार्गदर्शन करते रहे। मुझे कोराटे साहब जो विधान परिषद के सभापति हैं, उन्होंने आकर के बात की और शंकर गौड़ा जी साथ में थे और उन्होंने जिस ढंग से स्कूल की स्थापना की, उसको संचालित किया, उसके बारे में बहुत कुछ बताया। मैं यहाँ आकर के वही देख रहा हूँ जो उन्होंने मुझे बताया था। मैं उनके प्रति और इस संस्था के प्रबंधकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ।